سردیوں کی خنک راتوں میں آپ کا بہترین ساتھی، ایک اچھی کتاب، ایک اچھا مصنف، ایک اچھا گرم 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 شدید گرم کافی یا چائے کا مگ، اور آپ کے سامنے چلتا ہیٹر، مزہ ہے کہ نہیں؟ خیر، میرے لیے بہترین انتخاب امریتا پریتم، جن کو پڑھ کے مزہ آتا ہے، جن کی تصانیف کو پڑھ کے مزہ آتا ہے۔ آپ سوچتے ہو، سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں۔ آج کا یہ چھوٹا سا انتخاب آپ کی نظر، اس کا نام ہے مٹی کی ذات۔ چھبیلی نائر نے اپنے کچے چبوترے پر ایک چوڑا پتھر رکھ چھوڑا تھا۔ اس پتھر پر بیٹھ کر وہ برتن بھی مانجھ لیتی، کپڑے بھی دھو لیتی، اپنی ایڑیاں بھی رگڑ لیتی، اور جب ترکاری کا ساگ کاٹتے وقت چاقو کند پڑتا تو اسی پتھر پر رگڑ کر تیز کر لیتی۔ اپنے چبوترے کے پتھر کی مانند چھبیلی نے بھی اپنے دل میں متعدد درد چھپا رکھے تھے۔ برسوں سے اپنی زندگی کے جھوٹے دنوں کو مانجھ رہی تھی، میلی سانسوں کو دھو رہی تھی۔ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ چھبیلی کو اپنی بھری جوانی میں ایک راس لیلا کرنے والے سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ مہینوں تک کسی سیتا کا رام بن سکتا تھا، کسی کوکلا کا رسالو بن سکتا تھا، لیکن وہ چند لمحوں کے لیے بھی چھبیلی کا کچھ نہ بن سکا، کیونکہ سیتا رام کا ناٹک کھیلنے کے بعد کوکلا سالو کا ناٹک کھیلا جا سکتا تھا، غرض کے کوئی بھی ناٹک کھیلا جا سکتا تھا، بس جو ناٹک چھبیلی چاہتی تھی وہ ناٹک نہیں کھیلا جا سکتا تھا، اور وہ تھا بیاہ کا ناٹک۔ بیاہ کا ناٹک کھیلنے کے بعد پھر زندگی میں کوئی دوسرا ناٹک نہیں کھیلا جا سکتا۔ جو باراتی اس ناٹک کے تماشبین بنا کر آتے ہیں، وہ ایک مرد عورت کا تماشا دیکھتے ہیں، دل کھول کر تالیاں بجاتے ہیں، اور پھر اس ناٹک کے مرکزی کرداروں کو وہیں چھوڑ کر پنڈال خالی کر جاتے ہیں، اور اس ناٹک کے دونوں مرکزی کرداروں کو تمام عمر وہی ناٹک کھیلنا پڑتا ہے۔ چھبیلی اپنے بیاہ کا ناٹک کھیلنے کے لیے ترستی رہی، اور وہ راس لیلا والا محبت کی بازی ہار کر سادھو بن گیا۔ چھبیلی کئی سال تک اپنے سادھو کی واپسی کے انتظار میں کوے اڑاتی رہی، پھر کووں کی طرح اس کے بالوں کا رنگ بھی اڑ گیا، لیکن اسے اب بھی اپنے سادھو کی واپسی کا انتظار تھا، اور اب وہ اپنے بالوں میں سرخ مہندی لگانے لگی تھی، جو وہ گاؤں کی جوان لڑکیوں کی ہتھیلیوں میں شگن کے لیے لگایا کرتی۔ ہر روز اپنی آنکھوں میں کاجل بھی لگاتی رہتی، اور کچھ دیر بعد جب کاجل آنسوں سے گیلا ہو جاتا تو آنچل سے پونچھ کر چھڑا دیا کرتی۔ تمام عمر چھبیلی گاؤں کے جوان لڑکیوں کی نسبت لگاتی رہی تھی، لیکن اب اسے یہ احساس ستانے لگا تھا کہ آدمی کی تمام ذاتیں جھوٹی اور بناوٹی ہیں۔ اچھے بھلے برہمن کی لڑکی سے اگر چھتری کے بیٹے کا بیاہ ہو جائے تو ان کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوگا وہ یا تو نکٹو ہوگا یا لنگڑا۔ اور جو آدمی کی ذاتوں پر سے چھبیلی کا اعتماد ہٹتا گیا، اس کے دل میں مٹی کی ذاتوں کا اعتماد گہرا ہوتا گیا۔ اگر کوئی ذات سچی اور اصلی ہے تو وہ مٹی کی ذات ہے، اور جب کبھی چھبیلی نائن کسی لڑکی کے اپٹن ملتی، کسی لڑکی کے جسم پہ تیل کی مالش کرتی، کسی لڑکی کے بال سنوارتی، تو وہ یہی سوچتی رہتی: چکنی مٹی، ریتیلی مٹی، کنگریلی مٹی، سرخ مٹی، کالی مٹی، پیلی مٹی، مٹی کی بھی کتنی ذاتیں ہیں، لیکن جس مٹی میں کپاس پیدا ہوتی ہے اس میں بس کپاس ہی پیدا ہوتی ہے، جس مٹی میں انگور پکتے ہیں اس میں بس انگور ہی پکتے ہیں،
वाकई ये ज़ातें कितनी सच्ची और असली हैं। और छबीली की ये तमाम सोच और फिक्र उस दिन कसौटी पर चढ़ गई जिस दिन गांव के खतरियों की लड़की बालू को जाटों के बेटे नंदा से प्यार हो गया। खतरे दी बालू और जाटे दा तो नंदा, ये जुमला गांव वालों के ज़हन पर मुसल्लत हो गया, हर एक की जुबान पर चढ़ गया। और फिर मुँह कथरी ने पास वाले गांव में अपनी ही ज़ात बरादरी में बालों की मंगनी करके जुमले को दांतों तले पीस कर रख दिया। कुछ ही देर बाद छबेली नायन को बालों के हाथों में ब्याह की मेहंदी रचाने जाना था। नंदा का खेत छबेली के घर की पुश्त पर था और अपने घर के पिछवाड़े वाली दीवार पर गोबर थापते हुए छबेली ने मुतअद्दिद बार बालू और नंदा को खेतों के आंचल में बातें करते देखा था और वो सोचने लगी थी, इस दुनिया के सुनार सोने में तांबे की मिलावट करते हैं और दुनिया नहीं कुछ कहती, उन्हें कुछ नहीं कहती, लेकिन जब इस दुनिया में दो मोहब्बत करने वाले दिल सोने में सोना मिलाते हैं तो दुनिया हाथ धोकर उनके पीछे पड़ जाती है, उन पर लान तान करती है। और छबेली देखती कि नंदा बालू की मीठी मीठी बातों को सोने की लहरों की मानंद चुपता और संभाल संभाल कर अपने दिल में महफूज करता रहता, और बालू नंदा की प्यार भरी बातों को सोने की कीमती टुकड़ों की मानंद अपने दिल के पर्दों के नीचे छुपाती रहती। और फिर सांसों की धीमी आग पर यह सारा सोना पिघल जाता और सोने की मोहरें और सोने के कीमती टुकड़े एक दूसरे में तहलील हो जाते। तब राह चलते चोरों की आंखें हैरत से फट जाती और दिलों का पिघला हुआ सोना घबरा कर मंजमद हो जाता। सोने की ईंटें बन जाती और वही सोने की ईंटें प्रेमियों की पेशानी पर मार दी जाती। शादी वाले घर से छबीली नायन को 2 बार बुलावा आ चुका था। वो अपने घर से निकली और अपने घर के दरवाजे के साथ ही उसने अपनी सोच और फिक्र भी अंदर बंद कर दी। बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। छबीली ने हाथ से अपनी पेशानी पर गिरे हुए लाल लाल बालों को संवारा और दुपट्टे का आंचल सर पर रख लिया। अभी वो बमुश्किल 10 कदम ही चली थी कि हवा के एक तेज झोंके से आंचल सर से ढक गया और लाल बालों की एक लट पेशानी पर झूल गई। उसके साथ ही उसके दिल में एक रंगीन ख्याल उभरा। 1 मिनट के लिए बेचारे नंदा का चेहरा तो देखा, और वो नंदा के खेतों की जानिब चल पड़ी। कुएं पर परोठ चल रहा था। नंदा कुएं की जुगत पर मौजूद न था, लेकिन उसका एक दोस्त बैठा कुएं के अंदर से निकलती हुई आवाज़ों में गा रहा था। हीर ने कहा, जोगी झूठ कहता है, कौन रूठे हुए यार को मनाता है, बिछड़े और मेरे हुए को कौन मिलाए, लोग ऐम ही दिलासे देते रहते। छबीली का दिल भर आया। वाकई मरे हुए और बिछड़े हुए बराबर होते हैं। छबीली ने देखा कि नंदा सर झुकाए खेत की मींड पर बैठा है और उसकी आंखों से निकलते हुए आंसू नीचे गिरकर बहते हुए पानी में मिल रहे। छबीली ने सोचा, ये पानी जिन खेतों में पहुंचेगा उनकी फसल से आंसू की बू आएगी। नंदा ने छबीली नायन को देखा और फौरन मुंह फेर लिया। छबीली ने पेशानी पर झूमती हुई लट को पीछे किया, एहतियात से आंचल सर पर डाल लिया। उसे यूं लगा जैसे नंदा के पास बालू को देने के लिए कोई पैगाम था, न कोई शिकवा। छबीली शादी के घर में दाखिल हुई। वो सोच रही थी, हमारा पेशा भी अजीब है, कोई चाहे आबाद हो या बर्बाद, हमें इससे कोई वास्ता नहीं। हमारा काम तो बस रस्में पूरी करना और नेग लेना है। छबीली शादी के घर में दाखिल हुई। वो सोच रही थी कि छोटी छोटी लड़कियां मेहंदी के थाल के गिर्द बैठी हुई छबीली की राह देख रही थी।
सब लड़कियां जानती थीं कि जैसी मेहंदी छबीली लगाती है वैसी गांव में कोई दूसरी औरत नहीं लगा सकती। पहले मुझे, पहले मुझे, पहले मुझे की आवाज़ें आने लगी। छबीली को देखते ही कई लड़कियां चीख उठी। हालांकि उन्हें मालूम था कि सबसे पहले दूर कोने में दुबकी बैठी हुई बालू को मेहंदी लगाई जाएगी और उसके बाद किसी और की बारी है। कैसे इतराती हुई आती है। अरे अगर नायन ने आज अपना नखरा ना दिखाया तो कब दिखाएगी। कब से बेचारी लड़की बैठी सूख रही है। इतनी देर लगा दी। तुझे हथेली पर जरा सी मेहंदी ही तो लगानी है, कोई हल थोड़ी चलाना है। बालू की माँ और खाला ने एक ही सांस में छबीली पर कई चोटें कर डाली। छबीली के दिल में आया, कह दे आज तो तुम मुझसे मिल ही चलवा। उसके दिल में आया, आज तो तुम मुझसे हल ही चलवा लेती तो अच्छा था। लेकिन छबीली ने कुछ कहने से पहले बालू की जानिब देखा और उसके मुंह की मानंद अपना मुंह भी बंद कर लिया। बालू सर झुकाए बैठी थी। उसके हाथ में एक तिनका था जिससे वो अपने पाँव के करीब की कच्ची जमीन को रेत रही थी। रह रहकर आंसुओं के दो एक बूंदें उसके चिकने गालों पर से फिसल पड़ती और नीचे मिट्टी में जज्ब हो जाती। छबेली ने बालू के हाथ से तिनका लेकर दूर फेंक दिया और उसकी सफ़ेद हथेली खोलकर उस पर मेहंदी लगाने लगी। छबेली को महसूस हो रहा था कि चंद ही दिनों में मेहंदी का रंग तो उतर जाएगा, लेकिन तिनके से कुरेदी हुई मिट्टी में बालू ने जो आंसू बोए हैं वो किसी न किसी दिन जरूर उगाएंगे। पास खड़ी हुई औरतों ने सुहाग गीत गाना शुरू किए और छबेली, जिसने आज अपने सर पर फूलदार दुपट्टा डालते हुए ये नहीं देखा था कि उसने दुपट्टा उल्टा ओढ़ा लिया है, हर बात का उल्टा मफहूम ही समझ रही थी। वो सोचने लगी, लड़कियों की भी कैसी किस्मत होती है कि उनके माँ बाप की गली इतनी तंग हो जाती है कि एक प्यारा चेहरा भी उसमें से नहीं गुजर सकता, लेकिन एक बहुत बड़ी बारात इस गली में से निकल जाती है। खतरियों की अपनी ज़ात होती है, इस जाट के बेटे ने ये क्यों भुला दिया। बारात करीब आती गई, औरतों की चीखों पुकार तेज होती गई और बालू नंदा की प्रेम कहानी को अपने दांतों तले चबाती रही। तो खतरियों को अपनी ज़ात का रिश्ता मिल गया। छबेली नायर ने एक तवील सांस ली और सोचने लगी, लेकिन मिट्टी की ज़ात तो किसी ने नहीं देखी। एक बंजर घोड़े पर बैठकर चिकनी मिट्टी को ब्याह ले आया। बंजर सहरा बांधकर घोड़े पर चढ़ा और चिकनी मिट्टी को गोटे किनारे वाला सुर्ख जोड़ा पहनकर डोली में बैठ गई। कितने खूबसूरत तरीके से अमृता ने इन जुमलों को एक लड़ी में पिरो दिया। हम वाकई नहीं सोचते कि इंसानों की तरह हर चीज़ जात पात में बटी हुई है, रिश्ते नाते। हम तो खुद ही जात पात में बांट दिया सबको। खैर वो गहरी बात हो जाएगी, रात भी गहरी हो रही है, चाय का मग भी ख़त्म हुआ चाहता है और मेरा अफसाना भी। आप सबसे अब हम अगले किस्त में मिलेंगे, देखेंगे अब की बार अमृता प्रीतम है या इब्न इंशा या मुमताज़ मुफ्ती। अपना ख्याल रखिएगा।